आपका पुनः स्वागत है। सबसे पहले फीजी खबरें। नांदी स्थित फन वर्ल्ड प्लाजा होटल के मैनेजमेंट ने जानकारी दी है कि होटल के 200 गेस्ट रूम से कई सामानों की चोरी हुई है। न्यूजीलैंड बेस्ड शाह ग्रुप ऑफ कंपनीज इस होटल के ओनर हैं। होटल मैनेजर इमराज अली ने बताया कि ग्लोबल पैसिफिक चर्चेज कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ गेस्ट होटल में रुके हुए थे, जिसके बाद सामान लापता हुआ है। अली ने बताया कि कॉफी मेकिंग अमेनिटीज, टेलीविजन सेट्स, डोर हैंडल्स और बेडिंग्स के अलावा लाइट्स और पैडलॉक्स भी डैमेज हुए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर अतुनाइसा सोकोमोरी ने बताया कि इस सिलसिले में पुलिस के पास शिकायत दर्ज की गई है। फीजी में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए सोल्जर्स की याद में रिमेम्बरेंस डे को मनाया गया। सुबह की मिलिट्री सिमेट्री में यह आयोजन किया गया था। It's the haunting sound and a timely reminder of sacrifices made over 6 decades ago. While their numbers continue to reduce every year, their legacy remains. The younger generation, they ought to know what the history of this land is like. I mean, they ought to know what their forefathers did, their grandfathers, their great-grandfathers did years ago, the sacrifices that they made. They paid the ultimate price, most of them did, and they lived under treacherous conditions, very, very difficult conditions, for the sake of peace. This was at Suva's military cemetery. The dawn service attended by senior military officers, cabinet ministers and foreign servicemen. And later this morning, it was veterans like 96-year-old Talembaini Suka that this ceremonial event also honored. The Namata Tailevu veteran is now just one of the remaining 4 survivors from the Solomons campaign over 65 years ago. He was one of the many who was drafted into the front lines without even saying goodbye to his family. All those who were part of this trip met on Sunday and left Fiji on Tuesday without even saying goodbyes to their families. It was a mission that changed his life forever. Looking back, he says he's glad he was part of a historic event. It's his legacy and that of many others who never made it back or have since passed on that today's ceremonial hopes to continue. फीजी और चाइना के रिश्ते को एक और पड़ाव पर ले जाया जा रहा है, जबकि फीजी और चाइना के आपस में ट्रेड में भी बदलाव देखने को मिलेगा। Fiji's financial hub and its largest city, Shanghai, opened its doors to the Fiji consulate recently. Since then, our local representatives there have been working tirelessly to establish our footprint in a city where 24 million Chinese alone resides. It's a huge task for Fiji's Consul General Naomi Leweni as it taps into one of the world's financial hubs. Because it's quite different to the embassy in Beijing. Consulates deal mostly with people-to-people relationship, and also the trade and tourism. So whereas in an embassy, it's more on the government to government. Leweni says bilateral and political ties with China has never been stronger. Well, we have had visits this year by the Prime Minister, whereby he had bilateral talks with the President of the People's Republic of China and also the President when he visited Nanjing. इंडिया से नरेंद्र मोदी के दौरे से बायलेटरल समिट की शुरुआत हो चुकी है। मोदी का कहना है कि इंडिया और फीजी के रिलेशंस में सुधार होगा, साथ ही इस रीजन में फीजी को रीजनल हब बनाया जाएगा। Bilateral trade in 2013 was $51 million, with our exports being $49 million and imports $1.9 million.
Our development assistance to Fiji is considerable. We have supported the upgradation and modernization of the sugar factories, which are the mainstay of the agricultural community. We are now embarking on a cogeneration plant to improve efficiency. Our technical assistance has improved productivity and enhanced the value of the sugar which is produced in Fiji. टर्शरी एजुकेशन लोन स्कीम अब ज्यादा बच्चों को प्राप्त हो सकेगी। 1300 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को इससे फायदा होने वाला है। टेल्स के बोर्ड चेयरपर्सन डिक्सन का कहना है कि इससे कई और बच्चों को फायदा होगा। Despite some early teething problems, the TELS board says it has been implemented well after taking into account issues raised by students and parents. The restriction in the number in a certain discipline has restricted sort of some of these things. That's more to do with scholarship. But with loans, that's where, you know, that the topper scheme is on a 600. But there are more students who would be under the loan scheme, you know. And that's an area where we are obviously looking at making it easier and accessible to more people. Allocated a budget of $52.5 million in the last budget, the TELS board chairperson is optimistic the guidelines will change to make it easier and more accessible for students. We're not in a position to submit. We have submitted a paper to the minister about some of the suggestions that we may have had, but at the end of the day, government decides what the budget will be. It's a sizable budget last year, and I'm sure that if we just even continue with what we are doing, it will be quite an amount in the budget. And with the year coming to an end, current Form 6 and 7 students, as well as those in tertiary, will be able to plan for their future education as a roadshow on the scheme will start from tomorrow. अब वक्त हो गया है भारत की खबरों का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने 10 दिनों के विदेशी दौरे के लिए निकल चुके हैं, जिसमें वे अलग-अलग देशों के 40 अधिकारियों से मिलने वाले हैं। ऐसे में सबसे पहले वे म्यांमार पहुंचे। म्यांमार के राष्ट्रपति थीन शीन के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की। तो कोशिश नरेंद्र मोदी की यही रहेगी कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उन्हें कैसे बेहतर बनाया जाए, कनेक्टिविटी किस तरह से और सुधारा जाए दोनों देशों के बीच, और इसी को लेकर उनकी चर्चा हुई है। आसियान समिट में शिरकत करेंगे वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये उनका 10 दिन का विदेश दौरा है जिसमें वो 40 से ज्यादा नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। तो आज ही रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो पहला पड़ाव है उनकी इस यात्रा का वो म्यांमार है, और उन्होंने ट्वीट भी किया वहां पहुंचकर कि उनका वहां पर जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने इस पर खुशी जताई है। तो दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने के लिए और कनेक्टिविटी सुधारने के लिए ये चर्चा हुई है उनकी म्यांमार के राष्ट्रपति थीन शीन के साथ। दिल्ली में एक हादसे में 4 लोग जिंदा ही जल गए हैं। मरने वालों में एक छोटा बच्चा भी शामिल था। ये आग डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाने वाली एक फैक्ट्री में लग गई। दिल्ली में बीती रात एक हादसे में 4 लोग जिंदा जल गए। हादसा रोहिणी के सेक्टर 22 के पास राजीव नगर के बेगमपुर इलाके में हुआ। दिल्ली के बेगमपुर के राजीव नगर इलाके में एक दोने बनाने की डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाने की फैक्ट्री में करीब 2:30 बजे बीती रात आग लग गई, और इस आग की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पर जो 6 लोग सो रहे थे, सामने ये जो 2 कमरे नजर आ रहे हैं, यहीं पे 6 लोग, यहाँ पर काम करने वाले 6 लोग सो रहे थे, जिनमें से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, और 4 लोगों की मौत हो गई है, ये बताया जा रहा है। और इस तरह के सिलेंडर्स यहाँ पर पड़े हुए थे, जिसकी वजह से आग और इंटेंसिफाई हो गई और ज्यादा भड़क गई, और आग पर काबू पाने में थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी यहाँ फायर ब्रिगेड को। हादसा कैसे हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लूटमार की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। झारखंड के एक ज्वेलरी शोरूम में सरेआम बंदूक की नोक पर चोरी की गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुकी है। पुलिस के पास पूरी फुटेज होने के बाद भी अभी तक चोर पकड़े नहीं गए हैं। झारखंड के रामगढ़ में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट से सर्राफा कारोबारियों में दहशत फैल गई है। सतकौड़ी कॉम्प्लेक्स में नंदी ज्वेलर्स के यहाँ 6 बदमाशों ने करोड़ों के जेवरात लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश साफ तौर पर देखे जा सकते हैं।
सभी बदमाशों के हाथ में पिस्टल दिखाई दे रहे हैं। बदमाशों ने दुकान का शटर बंद करके एक एक जेवरात लूट लिए। दुकान मालिक का कहना है कि शाम के वक्त ग्राहक बनकर ये बदमाश आए और गोली मार देने की धमकी देकर सब कुछ लूट लिया। बदमाशों ने एक एक रैक और एक एक डिब्बे की बेखौफ तलाशी ली और जो पसंद आया सब लेकर चलते बने। लूटे गए जेवरातों में हीरे के भी कुछ जेवरात शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। ऐसी ही एक और घटना लखनऊ से सामने आई है, जहां फिर से लुटेरे चोरी करके चले जाते हैं और पुलिस की लापरवाही नजर आती है। देखिए ये वीडियो। लखनऊ में गाड़ी चोरी के मामलों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। 7 नवंबर को आशियान इलाके से चोरों ने सरेआम एक बोलेरो गाड़ी उड़ा लिया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रही है। मारुति ऑल्टो से आए बदमाश बोलेरो को धीरे धीरे बैक करते हैं और फिर गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी में दिख रही कार को लोगों ने खुद ही मड़ियाओं इलाके में एक कबाड़ की दुकान से ढूंढ निकाला। कबाड़ी से पूछताछ करने पर दूसरे आरोपियों का भी खुलासा हो गया। लोगों का आरोप है कि केस दर्ज कराने के बावजूद लखनऊ पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पंजाब के कपूरथला में नशे की हालत में धुत 2 लड़कों ने अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। बाजार जाने का झांसा देकर दोस्त को घर से बाहर ले गए और उसके बाद उसे मार डाला। परिवार वालों का कहना है कि मृतक के दोस्त नशे के लिए कुछ भी कर सकते थे। पंजाब के कपूरथला में नशे में धुत 2 लड़कों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। दोनों आरोपी लड़कों ने मृतक को बाजार साथ चलने को कहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों वापस आ गए। काफी देर तक वापस ना लौटने पर जब परिवार वालों ने खोजबीन की तो पास के एक खंडहर में लड़के की लाश मिली। परिवार का आरोप है कि आरोपी लड़कों को नशे की जबरदस्त लत थी। नशे की लत पूरा करने के लिए वे कुछ भी कर सकते थे। पुलिस दोनों आरोपी लड़कों की तलाश कर रही है। अब वक्त हो गया है स्पोर्ट्स का, तथा 2014 प्रेसिडेंट कप के लिए एमिकल FC आज देश पहुंचेगा। ये तथा अन्य स्पोर्ट्स ब्रेक के बाद।